ناظرین خوش آمدید، مرحبا یا مصطفیٰ. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تسنیم صابری کے ساتھ، اور 3 کنٹیسٹنٹس پڑھ چکے ہیں، 2 کنٹیسٹنٹ ابھی باقی ہیں اور جنہوں نے نعت پڑھنی ہے. ایک استاد نے بورڈ پر ایک لائن ڈرا کی اور اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اسے ہاتھ لگائے بغیر، مٹائے بغیر کیسے چھوٹا کیا جا سکتا ہے. سارے بچے حیران ہو گئے کہ اس لائن کو بغیر چھوئے، بغیر مٹائے اسے کیسے چھوٹا کر سکتے ہیں. استاد نے اس کے برابر میں ایک اس سے بڑی لائن ڈرا کر دی. کہا اب یہ چھوٹی ہو گئی ہے. یہ خواہش رکھنا کہ جو نعت خواں میرے ساتھ مقابلے میں شریک ہیں وہ اچھا نہ پڑھیں تو میں مقابلے میں شاید جیت جاؤں گا، یہ نیگیٹو سوچ ہے. پازیٹیونیس یہی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ سب اچھا پڑھیں، میں ان سے بھی اچھا پڑھوں. یہ سوچ بہت ضروری ہے. یہی سوچ آگے لے کر جاتی ہے. سوچ کا مثبت ہونا بہت ضروری ہے. یقیناً آج کنٹیسٹنٹس کی یہی سوچ ہوگی جو مقابلے میں شریک نعت خواں ہیں کہ سب اچھا پڑھیں لیکن میں ان سے بھی اچھا پڑھوں. اگلے کنٹیسٹنٹس ہیں پاک پتن شریف سے ان کا تعلق ہے. حافظ اطہر مسعود. کلام ہے مجھ پہ بھی چشم کرم. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم. یہ تیرا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑے گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
کیا کہیں گے اطہر مسعود کے لیے زبیب بھائی؟ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام انہوں نے پڑھا. اور میں اطہر سے بھی اور جتنے پارٹیسپینٹس ہیں میں ان کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کمپوزیشن کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں جو جگہیں ایڈ کی جاتی ہیں، جو کوشش سے کہی جاتی ہیں، انہیں خوبصورت بنانے کے لیے تلفظ نہ متاثر ہونے دیا کریں. جی ہاں، ٹھیک ہے. پہلی ہماری جو پرائورٹی پہ جو ہے بات، وہ الفاظ اچھے ادا ہوں. جی ہاں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی در یتیم جو پہلے انترے میں آپ نے لفظ آیا تھا، تو اس کا فیڈ آؤٹ اچھا نہیں آیا، میم کھا گئے آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح تنہا کو بھی آپ نے 2 حصوں میں ادا کیا. پھر خدا کا کرنا ایسے ہی ہے. تو اوورآل اچھا پڑھا آپ نے، ماشاء اللہ. جی سبھی بھائی. حافظ صاحب بہت باصلاحیت ہیں، گلے میں قدرتی ان کے مرکھیاں ہیں جس سے یہ خوبصورت کام لے سکتے ہیں، اور لیا بھی انہوں نے. لفظوں کی ادائی اور ان کے دو حصوں میں کر دینے کے بارے میں زبیب نے بتا دیا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ نے مجموعی اعتبار سے بہت خوبصورت پڑھا ہے، اور میں آپ کی پرفارمنس سے خاصا مطمئن ہوں. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب، حتمی رائے آپ کی ہے. میں یہ کہوں گا کہ حافظ صاحب نے ماشاءاللہ ان کی آواز بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی طرح سے انہوں نے پڑھا ہے. اور لیکن ادائیگی میں تھوڑی سی مجھے کمزوری محسوس ہوئی، کیونکہ انہوں نے مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے آقا بڑی اچھی طرح کہا ہے، لیکن تقاضا میں سمجھ نہیں آیا انہوں نے تقاضا کیوں کہا. جی ہاں، کہ ان کو تقاضا ہی آنا چاہیے تھا. جب ان کو قاف نکالنا آتا ہے تو پھر ان کو کہنا چاہیے تقاضا. لیکن انہوں نے تقاضا اس کو کہا. تو بہرحال یہ کہ ویسے دیکھا جائے تو کلام بھی انہوں نے بہت اچھا منتخب کیا ہے، اور آواز بھی اچھی ہے، اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گے. یقیناً. بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت سی نیک خواہشات حافظ اطہر مسعود کے لیے. آخری پارٹیسپنٹ، آج کے آخری ثنا خواں شریک اس مقابلے میں، عبید اللہ قادری، راولپنڈی سے ان کا تعلق. کلام ہے حبیب پاک، کسی کا خطاب کیا ہوگا. حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا، وہ لاجواب ہیں ان کا جواب کیا ہوگا، وہ لاجواب ہیں جو ہے غلاموں میں اے شہ کون جو ہے تمہارے غلاموں میں شہ لحد میں اس سے سوال و جواب کیا ہوگا، لحد میں اس سے سوال و جواب کیا
लाजवाब हैं, जलील गोशाए उज़लत में मशगला अपना, जलील गोशाए उज़लत में मशगला अपना, बजुज़ ख़याले रिसालत माब क्या होगा, बजुज़ ख़याले रिसालत माब क्या होगा, वो लाजवाब हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी ज़बीब भाई, उबैदुल्लाह कादरी। उबैदुल्लाह कादरी, आपने ऑडिशंस में इतना अच्छा पढ़ा था, तो इस वक्त आपको क्या हुआ कि आप भी अच्छा पढ़ गए आप? वाह वाह वाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। मैं सोच रहा था कहेंगे कि उससे भी अच्छा पढ़ा। नहीं, ये इससे अच्छा पढ़ सकते हैं। वाह। क्यों कि बात ये है कि एक होता है पढ़ना, जैसे बंदा रट के याद करता है ना कोई चीज और बस दोहरा दिया वही, और इन्होंने कोशिश से, जिसे कहते हैं ना, जैसे आमद का पढ़ना, कि जैसे इल्का हो रही है, किसी चीज का इल्का हो रहा है। ये तभी होगा जब इंसान कैफियत से पढ़ेगा। जी बिलाशुबा। जी सर, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाल्लाह। और जब इन्होंने आगाज़ किया उसी वक्त इनकी अदाई की सफाई, एक एक लफ्ज़ का नुमाया करना मुतवज्जे कर गया था। पढ़त तो मिसरे के बाद समझ में आती है कि भाई आदमी की रेंज क्या है, किस हद तक खेल सकता है, किस हद तक संभाल सकता है। तो माशाल्लाह इन्होंने पढ़ के भी दिखाया और दरमियान में जितनी जगह ये लगा सकते थे कोशिश की कि लगाएं। कलाम भी एक बड़े उस्ताद का पढ़ा माशाल्लाह, लेकिन बाज़ अशार ऐसे आ जाते हैं कि जिनकी वजाहत ज़रूरी होती है। शायर बहुत सारी जगहों पर नाज में बाज़ बातें कर जाता है, लेकिन उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मैं सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये तलबा हैं, इनको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी उम्मती की और आशिक की मेराज ये है कि वो सवालो जवाब का सामना करे और कामयाबी से गुजरे। सवालो जवाब का ना होना किसी आशिक की शान नहीं है, और ना ऐसा मुमकिन है। अल्लाह का एक निज़ाम है, सवालो जवाब होने हैं, होंगे, लेकिन उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। शायर की फिक्र थी, मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कलाम इंतखाब करें ना जब मुकाबले में पढ़ने के लिए, तो शेरों का इंतखाब भी कर लें। मतलब अल्लाह आपकी आप ये कहना चाह रहे हैं इनका सवाल जवाब होगा? सबका सवाल जवाब होगा, लेकिन हम सब हुजूर के फैज़ से कामयाब होंगे। जी वो तो यकीनन वहां की बात है, यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ इनका सवाल जवाब हो गया माशाल्लाह, खूबसूरत। वाह, दोनों ने राय बहुत अच्छी दे दी उबैदुल्लाह, लेकिन वीटो पावर अभी बाकी है। ये वीटो कर सकते हैं कारी साहब। जी माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका पढ़ना। इनकी आवाज़ बड़ी खुली हुई आवाज़ है, बड़ी प्यारी आवाज़ है, बड़ा अच्छा अंदाज से इन्होंने पढ़ा है और अदायगी भी अच्छी की है इन्होंने माशाल्लाह से। और बिल्कुल सभी भाई ने सही कहा है कि आप थोड़ा सा कलाम का जो इंतखाब है उसमें भी कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा कलाम उसमें लेने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ेंगे। माशाल्लाह 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 उबैद। और नाज़रीन, 5 पार्टिसिपेंट्स ने आज पढ़ लिया है। अब जजमेंट का वक्त है। इनमें से कौन 3 ऐसे हैं कि जो मुकाबले से एलिमिनेट हो जाएंगे और 2
सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, नाम जानेंगे। नाज़रीन, जजेस का फैसला इस वक्त मेरे हाथ में है और 4 मिनट होते हैं। 4 मिनट दिलो जान के साथ पढ़ना है। जिंदगी के ये लम्हात जो 4 मिनट्स हैं, ये बहुत कीमती हैं, सरमाया है, समझ लीजिए। और ये एक बहुत बड़ा संग मील होता है तमाम नौजवानों के लिए कि इस 4 मिनट को किस तरह से वो गुजार पाते हैं, बहुत अच्छा कर पाते हैं या अच्छा नहीं कर पाते। बहरहाल पांचों ने आज बहुत अच्छा पढ़ा और जीतेगा वही जिसने बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा है। मैंने अर्ज किया था कि 3 नातखां ऐसे होंगे कि जो इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और 2 शनाखां ऐसे होंगे हाईएस्ट नंबर्स लिए हुए कि जो मुकाबले में रहेंगे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। पांचों के नंबर्स मेरे सामने हैं। जो पहले एलिमिनेट होने वाले नातखां हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगा और उनके नंबर बताऊंगा। ज़ीशान चिश्ती, आपने 13 पॉइंट्स हासिल किए हैं। तीनों जजेस ने जो नंबर्स दिए थे उनके नंबर मिला लिए गए हैं। अब मैं उस नातखां का नाम लूंगा और उसके नंबर्स बताऊंगा कि जो सेमीफाइनल के लिए एक क्वालिफाई कर रहा है, और वो हैं उबैदुल्लाह कादरी। माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको, आप दाएं हाथ पर। नाज़रीन, दूसरे एलिमिनेट होने वाले नातखां जिन्होंने 14 पॉइंट्स हासिल किए, आपका ताल्लुक फाटा से है, मोहम्मद मरवान खान माहिर। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, अल्लाह ताला बरकत दे। 14 पॉइंट्स आपने हासिल किए। अब शनाखां बाकी हैं 2, और उनमें से एक ने इस मुकाबले से बाहर होना है और एक ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। ये दोनों के दरमियान अब इस वक्त मुकाबला किस तरह से हुआ है, जजेस ने क्या नंबर्स दिए हैं। एक नबील हुसैन और दूसरे हाफिज अतहर मसूद, इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। नबील हुसैन ने, जिनका ताल्लुक मीरपुर आजाद कश्मीर से है, तीनों जजेस के फैसले के मुताबिक 17 पॉइंट्स हासिल किए। 17 पॉइंट्स के साथ अब देखना यह है कि हाफिज अतहर मसूद ने कितने नंबर्स हासिल किए हैं। तो इन दोनों में से कौन आगे जाएगा और कौन मुकाबले से निकल जाएगा। हाफिज अतहर मसूद, जिनका ताल्लुक पाकपतन शरीफ से है, इन्होंने हासिल किए हैं 22 पॉइंट्स। इस तरह हाफिज अतहर मसूद दूसरे क्वालिफायर हैं कि जिन्होंने आज सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो आज के मुकाबले में 2 सेमीफाइनल में जाने वाले शनाखां उबैदुल्लाह कादरी, जिन्होंने 26 पॉइंट्स हासिल किए, और हाफिज अतहर मसूद, जिन्होंने 22 पॉइंट्स हासिल किए। तो ये 2 शनाखां हैं जिन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बहुत मुबारक आपको। आप भी मायूस ना हो, हिम्मत ना हारें, आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, हम सबको यकीन है। जजेस ने भी कहा, नाज़रीन भी कह रहे होंगे, लेकिन आज उन्होंने ज्यादा अच्छा पढ़ा है। बहुत नेक तमन्नाएं आपके लिए। अगले मुकाबलों में अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपकी भी पहचान नात बनाए पूरी दुनिया में। ठीक है, मैं बिलखुसूस आज के सेलिब्रिटी जज कारी भाई जफर कासमी साहब को दावत देना चाहता हूं। आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब, सैयद जबीब मसूद शाह साहब, आप तीनों अहबाब तशरीफ लाइए। नाज़रीन, कल एक नए मुकाबले के साथ सेम चैनल सेम टाइम आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी इस प्रोग्राम मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 3 में। कल तक के लिए अपने मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, तस्लीमात, मरहबा या मुस्तफ़ा।